Hello everyone, welcome to the second video of Architectural Aptitude Learning. This is Nandini Turkar from Design Daily team. In this video, we are going to study about one of the most important topic from JEE Mains Paper 2 and NATA, that is the sun path and its directions. So before starting the video, if you are new to this channel, please like, share and subscribe for similar content. So before wasting any time further, let's get started. Okay, so sun path होता क्या है? अगर हम देखें तो sun path is simple just a path which the sun appears on when the earth rotates around the sun. So basically जब अर्थ सन के अराउंड रोटेट होता है उस टाइम पे सन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से राइज होता है एंड पर्टिकुलर डायरेक्शन पे सेट होता है. सो उसका जो पूरी ट्रेजेक्टरी होती है दैट इज नोन एज द सन पाथ. So we'll see कि sun path actually क्या होता है, how we define it and how we can solve the questions regarding the sun path which has been asked in the paper. Okay, so to explain the concept of sun path in detail, this is a diagram which has been presented on your screen. So इसमें तुम देख सकते हो that we all know the earth is being tilted at an angle of 23.45 degrees Celsius, which is also sometimes considered as 23.5 degrees Celsius. एंड वो जो एक्सिस पे टिल्टेड होता है दैट एक्सिस इज नोन एज द रोटेशन एक्सिस. सो क्या होता है कि पूरा अर्थ इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स. सो जिसमें से एक इक्वेटर होता है विच इज द सेंटर लाइन which is also defined as the invisible line that runs around the center of the earth at the 0 degree latitude. So equator क्या करता है, equator divide कर देता है पूरे earth को into two parts, the northern hemisphere and the southern hemisphere. And actually there is also different invisible lines same as the equator. The one is tropic of cancer जो equator की ऊपर होती है, then there is tropic of capricorn जो equator के नीचे होती है, and also there is the south pole and the north pole. So we all know this is the basic concept of our earth, and we all have studied all this in our academics. So basically we all have to apply this in the phenomena. Okay, so as the earth axis is tilted at 23 degrees Celsius, like 23.5 degrees Celsius, the earth orbits around the sun, and this creates a 47 degree declination difference between the solitude sun path. So इससे क्या होता है कि जो particularly जो hemispherical parts है like the northern hemisphere and southern hemisphere में drastic changes हमें notice होते हैं in different season, like in summer season and in winter season. And the main reason of all this is just because our earth is not straight, it is being tilted at a particular angle. So we'll see what are these drastic changes which are being observed. Okay, so as you can see in the diagram above, this is a diagram of a sun path, the basic sun path diagram in different seasons. So what happens is when us, like if we are considering that an object or a house is placed in the center, like not particularly in the southern hemisphere, not in the northern hemisphere, it's placed in the center. So basically इस टाइम पे क्या होगा कि the sun has its path, like the sun rises from the east and sets in the west. ये चीज़ हमें सबको पता है. तो क्या होता है कि like the sun has its trajectory from east direction to the west direction, but it is being inclined towards the south. एंड समर सीजन में उसका जो साउथ इंक्लिनेशन एंगल होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, बट इन विंटर सीजन वो थोड़ा कम होता है. एज यू कैन सी समर सीजन का जो पाथ है दैट इज़ थोड़ा और लाइक ऊपर से टुवर्ड्स आर हेड, एंड वही विंटर सीजन का पाथ थोड़ा नीचे से होता है. दैट्स बिकॉज ऑफ द अर्थ रोटेशन एंड द एंगल टिल्ट. सो इसी हिसाब से अगर हम देखें तो नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में भी कुछ ड्रास्टिक चेंजेस हमें फील होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें, सो इसमें जब समर सीजन होता है तब जब सनराइज होता है डेट राइजेस फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट एंड सेट्स इन द नॉर्थ वेस्ट. एंड वैसे ही विंटर सीजन में द सन राइजेस फ्रॉम द साउथ ईस्ट एंड सेट्स इन द साउथ वेस्ट. ऐसा क्यों? अगर हम इसका फिनोमिना समझने की कोशिश करें, सो फॉर एग्जाम्पल विल ड्रॉ द सेम ऑब्जेक्ट in the northern hemisphere. So if this is an object we are considering and it is in the north hemisphere. So अगर अब हम देखें तो हमारा sun path, the sun path direction will be same. Okay, so but अब क्या हो रहा है कि वो north थोड़ा north के like थोड़ा जो summer season होता है उसमें थोड़ा जो हमारा sun path होता है वो थोड़ा आगे की तरफ होता है, that is towards the north. So इस हिसाब से देखिए तो north east would be the answer. But अगर हम
वही चीज़ अगर हम इसमें देखते हैं विंटर सीजन में, तो वो थोड़ा साउथ के एंगल, लाइक उसका एंगल कम होता है, तो साउथ की तरफ टिल्टेड होता है. दैट्स वाई वी लाइक द सन राइजेस फ्रॉम द साउथ ईस्ट. सो वो डायरेक्टली ईस्ट या वेस्ट से राइज नहीं होता, उसका एंगल थोड़ा सा अलग होता है. सेम चीज़ हैपन्स इन द सदर्न हेमिस्फीयर. वहाँ पे उल्टा होता है, वहाँ पे साउथ ईस्ट से सनराइज होता है इन द समर सीजन एंड सेट्स इन द साउथ वेस्ट, एंड विंटर सीजन में और उसका उल्टा हो जाएगा. दैट इज like it rises in the northeast and sets in the northwest. Okay, so now we'll see why this phenomena is being applied in architecture and what happens, like what type of questions are being asked in the exam. So basically architecture क्या होता है? It is a design procedure जिसमें हम हर चीज़ का ध्यान रखते हुए we design like a particular building or anything. सो इसमें हम लोगों को सनपाथ का भी कंसिडरेशन लेना पड़ता है, जस्ट बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें किस साइड विंडो प्लेस करना चाहिए, हमें किस साइड ओपनिंग देना चाहिए कि हमें ज़्यादा लाइट मिले या हमें कम लाइट मिले. सो टू अंडरस्टैंड ऑल दिस मैकेनिज्म वी हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक फिनोमेना ऑफ सनपाथ जो अभी हमने देखा. ओके, सो सबसे पहला अगर हम बात करते हैं अबाउट द ट्रीज, सो हमें ट्रीज कहाँ प्लांट करने चाहिए. So the trees should be planted in the south and the west direction of the building. The reason ऐसा क्यों होगा? Because साउथ डायरेक्शन में सन का जो फ्रीक्वेंसी रहती है सबसे ज़्यादा होती है. बिकॉज आई ऑल्सो टोल्ड यू अर्लियर कि साउथ डायरेक्शन की तरफ से ही सन हमें ज़्यादा दिखता है, बिकॉज इट इज़ लाइक इट्स एंगल इज़ बीन टिल्टेड टुवर्ड्स द साउथ. सो इस वजह से हमें साउथ डायरेक्शन में ज़्यादा ट्रीज प्लांट करने चाहिए ताकि हमें उसकी शेडो हमारे बिल्डिंग पे पड़े या फिर हमारे ऑब्जेक्ट पे पड़े एंड वी डोंट गेट द हार्श सनलाइट. सिमिलरली अब वेस्ट साइड में क्यों प्लांट करना चाहिए? बिकॉज अगर हम चाहे तो ईस्ट साइड में भी उस चीज़ को प्लांट कर सकते हैं, बट ईस्ट साइड में हम बेसिकली नहीं प्लांट करते हैं ट्रीज़ को. बिकॉज जो ये चीज़ तुम लोगों ने भी नोटिस किया होगा, इट इज़ अ नेचुरल फिनोमिना कि जब सन राइज होता है तो सन की जो सनरेज की जो इंटेंसिटी होती है दैट इज़ नॉट टू हाई. बट वहीं उस टाइम पे जब सन सेट होता है एट द टाइम ऑफ 4 to 5 इन द इवनिंग, उस टाइम पे थोड़ी हार्श सनलाइट होती है. सो वी ट्राई टू अवॉइड दैट, इसलिए हम वेस्ट साइड में ट्रीज को प्लांट करना प्रेफर करते हैं. सो मेनली द टू साइड्स विच आर बीइंग प्रेफर्ड आर द साउथ एंड द वेस्ट. सेकेंड इज लाइक द डेंस ट्रीज आर प्रेफर्ड मेनली, जो पूरा लाइक अगर समर सीजन है तो ज़्यादा उसमें हमें ज़्यादा शेडो प्रोवाइड कर सकें. Okay, then the large area of the building is faced towards the north. अब ऐसा क्यों? बिकॉज जितना हम बिल्डिंग को एक्सपोज करेंगे सन के कॉन्टैक्ट में उतना ज़्यादा वो हीट प्रोड्यूस करेगी एंड उतना ही हमें अंदर गर्मी लगेगी. सो टू अवॉइड दैट हम जो छोटा वाला साइड होता है बिल्डिंग का, अगर रेक्टेंगुलर बिल्डिंग है, अगर उसका लेंथ बड़ा है तो हम बड़ा वाला साइड कभी भी साउथ डायरेक्शन में फेस नहीं करेंगे, हम बड़ा वाला साइड हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करेंगे ताकि कम से कम हमें कम से कम हमें सनलाइट अंदर मिले, सो दैट द बिल्डिंग डज नॉट गेट हीटेड. सेकेंड इज लार्ज ओपनिंग शुड बी प्रोवाइडेड ऑन द नॉर्थ साइड. अब लार्ज ओपनिंग नॉर्थ साइड में क्यों होना चाहिए? बिकॉज नॉर्थ साइड इज द साइड जहाँ पे सबसे कम सनलाइट मिलती है, लाइक मिलती ही नहीं है, और अगर मिलती भी है तो ज़्यादा हार्श नहीं होती, इट इज़ वेरी लाइट. सो इसलिए हम लार्ज ओपनिंग्स नॉर्थ साइड प्रेफर करते हैं क्योंकि वहाँ से डायरेक्टली हमें नेचुरल लाइट आती है. Because like natural sunlight नहीं आती but we get the good amount of light. Okay, and the last is like the horizontal protector. अगर हमारे पास कोई छज्जा है जिसको हम horizontal protector में consider करते हैं, जो windows के ऊपर होते हैं, that are being provided in the south direction, क्योंकि south direction में जो sun का angle होता है which is on the top, so ताकि उस direction से हमें window में directly sunlight अंदर ना pass हो, इसलिए we provide छज्जास. सिमिलरली वर्टिकल प्रोटेक्टर्स जो होते हैं जिसे हम लोअर्स बोलते हैं, दीज आर प्रोवाइडेड इन द ईस्ट एंड द वेस्ट डायरेक्शन. बिकॉज ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन से जब सन की रेज पास होती है सो दैट आर इन पर्टिकुलर एंगल. सो इसलिए हम यूजुअली उस टाइम पे अगर यहाँ पे हमारा कोई भी विंडो है तो उसमें हम वर्टिकल प्रोटेक्टर्स ये करते हैं विच इज नोन एज लोअर्स. ओके, So हमने different phenomena देख लिया and now we'll see which type of questions are being asked in the exam. So जो जितना भी हमने अभी पढ़ा, these is the basic phenomena, यही आपको सारे questions में apply करना है. For example, the first question it's asking that natural shadowless light is available from which direction. हमने ये phenomena consider किया था कि कौन से direction से हमें सबसे कम natural light मिलती है but shadowless light मिलती है. That is the north direction. Okay.
देन इन बिल्डिंग विच पार्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमम हीट गेन, सबसे ज़्यादा हीट गेन हमें बिल्डिंग के कौन से पार्ट पे होता है। तो अगर हम सनपाथ को कंसिडर करें तो छज्जास को होता है, बट सबसे ज़्यादा होगा रूफ को, बिकॉज रूफ इज ऑल एक्सपोज टू द सन। ओके, सो थोड़ा लॉजिक लगाना है एंड वी हैव टू जस्ट रिमेंबर द फिनोमेना ऑफ द सनपाथ। Yeah, the next question is horizontal sunshades are provided to protect building on which facade, like from which side mainly. So horizontal sunshades में क्या prefer होता है, that is the छज्जास. If suppose this is a building, like building profile, and this is a window. तो छज्जास क्या होता है, हमारे विंडो के ऊपर जो एक हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म होता है या हॉरिजॉन्टल सरफेस होता है, that is considered as छज्जास. सो इसीलिए उस लाइक उस हॉरिजॉन्टल सनशेड को हम कौन से डायरेक्शन में प्रोवाइड करेंगे, डेट इज इन द साउथ डायरेक्शन. अब साउथ डायरेक्शन में क्यों, बिकॉज साउथ साइड से ही सबसे ज़्यादा हार्श सनलाइट हमें मिलती है. एंड वहीं अगर हम ईस्ट से अगर ईस्ट एंड वेस्ट से देखेंगे तो उस टाइम पे सन का एंगल बहुत नीचे हो जाता है सनराइज एंड सनसेट के टाइम पे. सो अगर हम उस टाइम पे अगर हॉरिजॉन्टल छज्जास प्रोवाइड कर भी रहे हैं, सो देयर इज नो यूज, बिकॉज सनलाइट तो अंदर आ ही जाएगी, बिकॉज द एंगल ऑफ सन इज क्वाइट स्लो. इसलिए उस कंडीशन में हम हॉरिजॉन्टल सनशेड्स नहीं प्रोवाइड करते. इन दैट कंडीशंस वी प्रोवाइड वर्टिकल शेडिंग डिवाइसेस, फॉर एग्जांपल लोवर्स मेनली. इसलिए अगर यहाँ पे अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि वर्टिकल सन डिवाइसेस आर बेस्ट फॉर विच डायरेक्शन, दैट विल बी द ईस्ट एंड द वेस्ट, बिकॉज उस टाइम पे सन का जो एंगल होता है वो नीचे होता है. सो इसलिए वी हैव टू प्रोवाइड वर्टिकल सनशेड्स. Yeah, so these were some of the general questions regarding the sun path. इसमें भी कभी कभी consider होता है about the northern hemisphere and the southern hemisphere. So there are different varieties of questions which are given in the exam, जिसमें just we have to read the question carefully and we have to remember the phenomena of the sun happening. So according to this phenomena, you can solve any type of questions coming in the exam in the sun path topic. So yeah, that's it for today's video. Thank you guys for watching, and Design Daily wishes you all the best for your exams. If you have any doubts regarding any topic, you can mention them in the comment box or you can directly DM us on our Instagram handle. The link is being provided in the description box. Thank you.